BA سال دوم کے تمام طلباء و طالبات، ہم پڑھ رہے تھے کمپیوٹر سے تعلق رکھنے والا پرچہ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ فرسٹ، ڈیسک ٹاپ پبلشنگ پارٹ فرسٹ۔ اس میں ہم نے کمپیوٹر کیا ہے، کمپیوٹر کے تعلق سے پوری تمام معلومات کا ہم نے احاطہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ چلیے آج ہم پڑھتے ہیں کمپیوٹر اپنا کام کیسے کرتا ہے، کمپیوٹر کے کام کا طریقہ۔ اس میں ہم زیادہ کچھ نہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ پرچہ جو رکھا گیا ہے صرف اور صرف ایک کمپیوٹر کے تعلق سے معلومات اور اس پر اس کے لیے لگنے والی ضروری معلومات کا اضافہ ہو، اس کے مقصد سے یہاں رکھا گیا ہے۔ اس پہ کمانڈ آپ کو مہارت تو تبھی حاصل ہوگی جب اس کا ہم پریکٹیکل کریں، اس کو ہم عملی طور پر کر کے دیکھیں۔ تو اب کام کا طریقہ کیسا رہتا ہے کمپیوٹر کا، تو اس کو دیکھنے کے لیے صرف ہم چند ایک مثالوں کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کا طریقہ کیسا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیٹا پر چلتا ہے، مطلب جس طریقے کا ڈیٹا ہم کمپیوٹر میں جمع کرتے ہیں اس تعلق سے تمام معلومات ہمیں مل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شروعات میں ایک بار ہم جس طرح سے ہمیں کام پڑ سکتا ہے اس طرح سے اس کو اگر ہم ڈیٹا دے دیتے ہیں، اس کمپیوٹر میں وہ تمام ڈیٹا ہم ایک بار جمع کر دیتے ہیں، تو ہمیں ہر بار اسی ڈاٹا میں سے جو بھی معلومات چاہیے in a few minutes, few seconds، کچھ چند لمحات میں، چند سیکنڈ میں ہمیں وہ معلومات آسانی سے مل جاتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی صفحات پر مشتمل ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر دیکھیں کہ ہمیں ایک فائل میں سے کچھ نمبر چاہیے یا کسی کا پتہ چاہیے، تو اب اتنے فائل دیکھنا اور اس پہ ڈھونڈنے کے بجائے اگر کمپیوٹر میں وہ فائل اگر موجود ہے، ہم نے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے، تو وہ فائل میں جب بھی ہم کمپیوٹر چالو کریں گے ہم فوراً سرچ میں اس فائل کا نام ڈال دیں اور وہ فائل آنے کے بعد اس میں ہم فائنڈ کرتے ہیں، یعنی تلاشتے ہیں، صرف اس نمبر یا اس کا ہم لکھ دیں ایڈریس، تو ہمیں کچھ ہی سیکنڈ میں وہ ایڈریس وہ نام کے ساتھ ہمیں اسکرین پر نظر آ جاتا ہے۔ مطلب لمحوں وقت منٹوں کے اندر ہمارا کام ہو جائے گا، جبکہ یہی کام انجام دینے کے لیے اگر ہم سادے فائل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہوگا۔ اس کے لیے ایک دن بھی لگ سکتا ہے، اور کبھی کچھ جلد بازی کی وجہ سے جو جس صفحے پر وہ چیز موجود ہو اگر وہ ڈبل پلٹ جائے تو پھر تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے کمپیوٹر کیا کرتا ہے، کوئی بھی کام کو منٹوں میں کر دیتا ہے۔ اب اس کی دوسری مثال اگر ہم دیکھا جائے کہ بھئی کوئی چیز اعداد و شمار کے تعلق سے کوئی کام ہو، مطلب آپ کے پاس کچھ ایسا فارمیٹ اگر تیار رکھتے ہیں جس طریقے سے ہم مائکروسافٹ ایکسل میں کام کرتے ہیں، تو ہمیں مختلف، جیسا اگر ہم ٹیچنگ کے تعلق سے اگر تدریس کے میدان کی بات اگر کرتے ہیں تو ایک کلاس میں مختلف طلباء ہوتے ہیں اور ان تمام طلباء کے مختلف جو مضامین ہوتے ہیں اس کے ہم نمبرات کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس میں جب وہ ڈاٹا فٹ کرتے ہیں وہ فارمولا ہم سیٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا ہوگا، جب ہم اس کو خالی صرف اور صرف اس کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے آخر میں ان تمام کا ٹوٹل ہمیں مل جائے گا، اس کا فیصد جو ہے پرسنٹیج وہ فوری مل جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام
क्लास के कितने तलबा है उन तमाम के नंबरात की अगर जमा भी करना है तो हमें कुछ लम्हात में, कुछ सेकंड के अंदर हमें उनके नंबरात भी मिल जाते हैं। तो खैर कंप्यूटर इस तरीके से किस तरीके से काम करेगा, तो कहा जाता है कि कंप्यूटर को हमें जिस तरीके से हमें जो काम लग सकता है उस तमाम का पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा उसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसा अगर हमें कुछ काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर हम वो कर लेते हैं कंप्यूटर में तो हम क्या है, चाहे कुछ अगर लिखना हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो होता है वो वर्ड में एक फाइल में आप काम कर ले सकते हैं आसानी के साथ और उसमें महफूज होती है। इसके अलावा अगर हमें कुछ मैथ का या इस तरीके से नंबरात वगैरह का हिसाब किताब रखना है तो हम उसमें एक्सेल के अंदर वो बातें उसमें ऐड करते हैं या उसके सब काम डाटा उससे देते हैं तो उसका आंसर हमें फौरी वो कुछ लम्हों में वक्त में मिल जाता है। इसी तरीके से कोई मालूमात हमें ढूंढना है बड़े बड़े फाइलों में भी तो वो भी हमें कुछ मिनटों में ही वो मालूमात इसमें हासिल हो जाती है। तो कंप्यूटर काम का तरीका ये है कि उसको डाटा हमें प्रोवाइड करना होता है। अगर हम डाटा फार्मूला इस तरीके से अगर एक बार सेट कर देते हैं तो फिर हर वक्त के लिए उस पे से हम कोई भी काम कुछ मिनटों में ही मुकम्मल कर लिया करते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर क्या करता है, अपना काम करता है कि पहले हमें डेटा देना होता है, वो डेटा देने के बाद हम उसको जिस तरीके से उस डेटे की बिना पर हिदायत देते हैं वो उस पर अमल शुरू करता है। अमल शुरू करने के बाद उन तमाम जो भी मालूमात उसके पास या कंप्यूटर के अंदर मौजूद है वो सब क्या करता है, उसके अंदर मिनटों के अंदर ही उन तमाम फाइलों का, फोल्डरों का तज्जिया करता है, एनालिसिस करता है और उसमें से जो आप मालूमात चाहते हैं वो आपके सामने निकाल कर हाजिर कर देता है। मतलब ये सब काम क्या होता है, एकदम मिनटों के अंदर ही हो जाता है। तो ये है कंप्यूटर का काम करने का तरीका। इससे हमें पता चलता है कि कंप्यूटर कितने अच्छे तरीके से और कितनी जल्दी से अपना काम मुकम्मल करता है। इसी वजह से आज के दौर में वक्त की खिल्लत जो कहा गया है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, ये कंप्यूटर का जो मकसद था वो हमें यहाँ पर मुकम्मल होता हुआ नज़र आता है। चलिए अब हम देखते हैं कंप्यूटर की खुसूसियत क्या क्या है। अभी हमने कंप्यूटर की तारीफ, कंप्यूटर क्या होता है, उसकी मुख्तलिफ तारीख़ के बारे में पढ़ा हमने कि किस तरीके से कौन कौन से दौर थे, कौन कौन से कंप्यूटर के अदवार थे, इसके अलावा उसकी कौन कौन सी किस्में थी, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम वगैरह, डिजिटल। अब हमें ये देखना है जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंप्यूटर की खुसूसियत। कंप्यूटर की खुसूसियत कौन कौन सी? तो नंबर एक जो उसकी सबसे अहम खुसूसियत है वो है रफ्तार, स्पीड, कितनी फास्ट है कि ये काम करता है। दूसरा इसकी खासियत है वो खुदकारी। आज हमें सिर्फ खुसूसियत के हेडिंग पॉइंट्स पढ़ना है कि कौन कौन से ऑटोमेशन जिसे कहते हैं खुदकारी को। इसके अलावा यकसानियत, यकसानियत मीन्स एक्यूरेसी, मौजूनियत, वर्सेटिलिटी, मौजूनियत, वर्सेटिलिटी। और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के हमें क्या करना है, कंप्यूटर के अक़साम के बारे में जो हमने पहले पढ़ा था उसी को तफसीली पढ़ना है। तो अब देखिए कंप्यूटर के खुसूसियत कौन कौन से है। जब हम कंप्यूटर की खुसूसियत के बारे में बात करते हैं तो इसकी सबसे अहम खुसूसियत जो है वो है स्पीड, रफ्तार। कैसी रफ्तार है तो कहा गया है कि किसी को काम को आपको क्या करना पड़ता है, वक्त के साथ तेज़ी से करना, ये वक्त की ज़रूरत है। इसीलिए
कंप्यूटर आपके काम को ज़्यादा तेज़ी से अंजाम दे सकता है। कंप्यूटर पलक झपकते ही ज़रब तक़सीम के लाखों काम कर सकता है। अगर आपको 465 में से 645 से ज़रब करना है तो इसमें तकरीबन 1 से 2 मिनट लेकर वो इस मामले का हल आपके सामने पेश कर देगा। अगर यही काम कैलकुलेटर से तकरीबन 5 मिनट लगता है, लेकिन जदीद कंप्यूटर में प्रोग्राम डाला गया हो तो 30 लाख ऑपरेशन एक साथ की जा सकती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही जुमला, एक ही बात आप मुकम्मल नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए आपको क्या है, एक ही वक्त में बहुत सारे प्रोग्रामों पर ये काम कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ खाली एक तरफ ज़रब करना है, तक़सीम करना है, यही नहीं बल्कि दूसरे फाइल्स वगैरह ढूंढना या उसमें कुछ जो भी मालूमात है उसको पेश करना वगैरह भी वो एक साथ में काम कर सकता है। तो कहा गया है कि डाला गया हो तो 30 लाख ऑपरेशन, मतलब कोई भी चीज़ों की मालूमात जो है तो 1 मिनट के अंदर इसमें एक साथ 30 लाख फाइल इसमें काम कर सकता है। कितने? 30 लाख एक साथ ये काम कर सकता है। तो इसी से हमें अंदाज़ा लगता है कि कंप्यूटर कितना ज़्यादा रफ्तार के साथ, स्पीड के साथ अपना काम अंजाम देता है। अगर यही बात अगर इस तरीके से कही जाए कि खुदकारी इस पे दूसरा जो इसकी अहम खुसूसियत है वो खुदकारी है, जिसको तो